Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Under which section of the Indian Evidence Act the presumption of death is mentioned if a person is missing for 7 years? Section 107, Section 108, Section 112, Section 113. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक लापता रहता है तो उसकी मृत्यु की धारणा का उल्लेख किया जाता है? धारा 107, धारा 108, धारा 112 या धारा 113? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 108. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 108. Section 108 of the Indian Evidence Act 1872 states that if a person has not been heard of for 7 years, he or she is presumed to be dead. This presumption can be rebutted by contrary evidence. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 108 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के बारे में 7 साल तक कोई खबर नहीं मिलती है तो उसे मृत मान लिया जाता है. इस धारणा को विपरीत साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द इंडियन पीनल कोड व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? 7 years, 10 years, 12 years और 18 years? भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक दायित्व के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 18 वर्ष? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 7 years. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 वर्ष. Section 82 of the Indian Penal Code states that nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age. The minimum age for criminal responsibility under Indian law is 7. भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है. भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व के लिए न्यूनतम आयु 7 वर्ष है. नेक्स्ट. Which section of the Specific Relief Act outlines the conditions under which a perpetual injunction may be granted? Section 38, Section 39, Section 40 और Section 41. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा उन शर्तों को रेखांकित करती है जिसके तहत स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है? धारा 38, धारा 39, धारा 40 या धारा 41? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सेक्शन 38. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 38. Recently, in the Harmeet Singh versus Desh Deepak Gupta case, the Allahabad High Court ruled that civil courts have jurisdiction to hear tenant suits for perpetual injunction against landlords regarding eviction, stating this is not barred by the UP Regulation of Urban Premises Tenancy Act 2021. Section 38 of the Specific Relief Act outlines the conditions under which perpetual injunctions may be granted, such as preventing the breach of an obligation or when monetary compensation is inadequate. हाल ही में हरमीत सिंह बनाम देश दीपक गुप्ता मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिविल न्यायालयों को बेदखली के संबंध में मकान मालिकों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए किराएदारों के मुकदमों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है, जिसमें कहा गया है कि यह यूपी शहरी परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 द्वारा वर्जित नहीं है. विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 38 में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है, जिसे कि किसी दायित्व के उल्लंघन को रोकना या जब मौद्रिक मुआवजा अप्राप्त हो. नेक्स्ट. Which of the following entities is classified as an intermediary under Rule 3 of the IT Rules 2021? Print media organizations, social media platforms, judiciary, political parties. निम्नलिखित में से कौन सी संस्था IT नियम 2021 के नियम 3 के तहत मध्यस्थ के रूप में वर्गीकृत है? प्रिंट मीडिया संगठन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यायपालिका, राजनीतिक दल? The correct answer for this question is option B, social media platforms.
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। Recently, in the case of Kunal Kamra versus Union of India, the Bombay High Court has held that the citizens only have the right to free speech and expression and not the right to know truth, and therefore the state cannot claim that only true information is to be disseminated amongst the citizen. Social media platforms are classified as intermediaries under the IT rules 2021 and they are required to follow due diligence while performing their duties. हाल ही में कुणाल कामरा बनाम भारत संघ के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना है कि नागरिकों को केवल स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, ना कि सत्य जानने का अधिकार, और इसलिए राज्य यह दावा नहीं कर सकता कि नागरिकों के बीच केवल सच्ची जानकारी ही प्रसारित की जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी नियम 2021 के तहत मध्यस्थों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। रूल उथुफुआ एक्वेट और उथुफुआ कॉन्विक्ट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 298 सीआरपीसी, सेक्शन 300 सीआरपीसी, सेक्शन 320 सीआरपीसी और सेक्शन 321 सीआरपीसी। उथुफुआ एक्वेट और उथुफुआ कन्विक्ट का नियम दिया गया है सीआरपीसी की धारा 298 में, सीआरपीसी की धारा 300 में, सीआरपीसी की धारा 320 में या सीआरपीसी की धारा 321 में। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीआरपीसी की धारा 300 में। Section 300 of the CRPC embodies the general rule which affirms the validity of the pleas of Uthufua acquit and Uthufua convict. CRPC की धारा 300 में सामान्य नियम निहित है जो Uthufua acquit और Uthufua convict की दलीलों की वैधता की पुष्टि करता है। Now it's time for the practice question. The acceptance must be received within a week, received within a fortnight, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। स्वीकृति इस प्रकार होनी चाहिए: 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त, 2 सप्ताह के भीतर प्राप्त, पूर्ण और अयोग्य, पूर्ण और योग्य। सेंड अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।